Good morning. Good morning, everybody. Okay, now in previous lecture we have discussed the design of fasteners. In that, the part one that was screw joint. Now we are going. I'm going to explain the design of fasteners in that welded joints. Okay, this is your chapter number 6. You have already learned about the welding processes, the different types of welding, the requirement application in the in previous subjects, in second year subjects, MPR and AMP and all. Okay, so welded joint is a permanent joint which is obtained by fusion of the edges of two parts to be joined together using a filler material. And sometimes we don't even need the filler material. कभी हम लोग को उसकी ज़रूरत नहीं भी होती if the width thickness of the sheets are very small. Okay, now the fusion may be obtained by burning of the gas or by producing an electric arc. Pressure may or may not be applied during welding processes. Okay, so in short, you are aware with the welding, what is welding and the different welding processes. Okay, now we'll see the advantages of the welded joints. 100% efficient because the joint is 100%. Okay, so it is 100% efficient. It is possible to weld any part, possibility to weld with or to join any two parts with each other. Okay, now it requires comparatively less time for welding. Means ये joint बनाने के लिए comparatively less time लगता है. As we have learned the threaded joints, तो उसमें bore करना, ठीक है, या threading करना, ये सब time consuming processes है. Okay, so comparatively compared to that, here the time requirement is less light in construction because we are going to join the parts directly to each other. Okay, we don't need any extra part like bolts or studs and nut. Comparatively it is cheaper from the threaded joints. The welded joints are tight and leak proof joints. Okay, compared to the threaded joints or other glue joints, उसके comparison में ये tight and leak proof होते हैं. Okay, now we don't have any stress concentration problem because अपने को कोई सा threading या hole नहीं करना पड़ता है. We are not going to reduce the cross sectional area of the parts which we are going to join. Okay, so there is no stress concentration problem. It is comparatively high in strength and we can join any complex shape with each other with the help of welded joints. because अगर screwed joint बनाना है तो कोई भी complex shape के लिए नहीं बना सकते हम लोग, ठीक है, but welded joints में we can join any complex shape with each other. Okay, now disadvantages. There are some disadvantages also, like temperature stresses are induced into the welded parts because heat की वजह से, fusion की वजह से ये joint बनता है. Now we need the skilled worker, skilled welders, and for skilled welders we have to pay the high salaries and wages. This is also the problem. And it is difficult to inspect बिकॉज जॉइंट्स जो है वो पूरा पार्ट्स जहाँ पे जॉइंट बनता है उधर पे मटेरियल पार्ट्स जो है वो कवर हो जाता है. ओके, सो इट इज़ डिफ़िकल्ट और वो परमानेंट जॉइंट होता है तो डिफ़िकल्ट टू इंस्पेक्ट. वी कैन नॉट डिसमेंटल ईजीली. जैसे हम स्क्रूड जॉइंट्स में डिसमेंटलिंग कर सकते हैं वैसा नहीं कर सकते. ओके, नाउ देर इज़ वन मोर प्रॉब्लम दैट वी कैन नॉट जॉइन द मटेरियल्स हैविंग द डिसिमिलर प्रॉपर्टीज़. एग्जैक्टली पूरी तरह से अपोजिट प्रॉपर्टीज़ वाले को जॉइन नहीं कर सकते लाइक स्टील एंड एल्यूमिनियम. So there we have only option of riveting and screwed welding or threaded joints. Okay, now it is poor in damping out the vibrations. Now there are various applications of the welded joints. ये तुम लोगों को याद रखना है. यहाँ पे बहुत सारे points लिखे हुए, इतने मैं सब नहीं पढ़ रही है अभी, ठीक है. It is used in fabrication. It is used for replacement of bolted joints and riveted joint. It is a repair medium. Like अगर कोई cracks वगैरह आ गया मटेरियल में, ठीक है, अगर सरफेस पर कोई cracks है तो we can fill that crack with the help of the weld. Okay, now we use the welding in welded joints in steel structures like bridges, industrial sheds, towers. Okay, now that is also useful in pressure vessels, machine components like flywheel, gears, jigs, fixtures. We can join there with the help of welded joints. Okay, now we see the next here in the different parts of the different points of the comparison is shortlisted over here, like and this comparison is between the welded joint and screwed joint.
type of joint, rigid welded joints are rigid and permanent, whereas the screwed joints, bolted joints are temporary. Cost of weld assembly is less compared to welded joint, and it is more in screwed joint. Strength is more in welded joint, less in screwed joint. Labor equipment, highly skilled labor is required. Labor requirement, and in screwed joint semi-skilled laborers will also do. Inspection in welded joint is difficult, and comparatively it is much easy in screwed joint. And chances of leakage, welded joints make the leak proof joints, so there is the chances of leakage is less. Okay, now there are various types of welded joints. We can see the different types of welded joint. ये भी तुम लोग ने AMPR वगैरह में पढ़ चुके हैं, ठीक है. The first category is the lap joint. When we make the joint between two overlapping components, अगर दो overlapping components है और उसको हमने with the help of filler material अगर उसको वहाँ पे weld किया है दो parts को, overlapping components को, such particular joint is called lap joint. इसी को हम लोग fillet weld भी बोलते हैं, ठीक है ना. fillet weld जहाँ पर वो जो दो overlapping parts join होते हैं वहाँ पे एक ट्राइंगुलर क्रॉस सेक्शन जैसा बन जाता है बिकॉज ऑफ द वेल्ड. इसलिए इसका अगर तुम लोग सिंबल देखेंगे, ठीक है, आगे मैंने सबके सिंबल्स का टेबल भी इसमें लिखा है, ठीक है, तो वहाँ पे तुमको समझ में आएगा उसका जो सिंबल होता है वो एक ट्राइंगल का सिंबल होता है. ओके, नाउ देयर आर वेरियस कैटेगरीज ऑफ द फिलेट वेल्ड और लैप जॉइंट. One is parallel fillet weld and transverse fillet weld. Now again the difference between these two, parallel fillet weld, if the load axis, जो parts को हम लोगों ने welding की मदद से join किया उस पर जो load act कर रहा है, अगर load axis is parallel to the axis of the fillet, ठीक है, और it is parallel to the length of the fillet, then it is called as parallel fillet weld. And transverse, if the load axis is perpendicular to the axis of the fillet, perpendicular to the length of the fillet, then it is called the transverse fillet. Okay, अगर एक साइड में ओवरलैपिंग पार्ट्स के एक साइड में ही अगर हो रहा है तो दैट इज़ कॉल्ड सिंगल फिलेट वेल्ड, ठीक है. और अगर दो ऐसी दो जगह पे जॉइंट हो रहा है, एक ही असेंबली दो जगह पे एक साथ जॉइंट हो रही है, देन इट इज़ कॉल्ड डबल. तो पैरेलल फिलेट वेल्ड में भी सिंगल पैरेलल फिलेट वेल्ड होता है, डबल पैरेलल फिलेट वेल्ड होता है. ट्रांसवर्स में भी सिंगल और डबल दोनों होता है. ना हियर ऑल दोज आर शोन इन द डायग्राम. ये ऊपर के जो 6 डायग्राम्स है, ठीक है, हर 2 डायग्राम जो है वो टॉप व्यू और फ्रंट व्यू और टॉप व्यू वहाँ पे बताया है, ठीक है. जो फर्स्ट डायग्राम है इट इज़ फॉर द डबल पैरेलल फिलेट वेल्ड. यू कैन सी द W इज़ द लोड एक्टिंग ऑन द पार्ट्स. ओके, सो W जो है उसका लाइन ऑफ एक्शन इज पैरेलल टू द लेंथ ऑफ द वेल्ड. जो डार्क ब्लैक कलर से बोल्ड किया इट इज़ शोइंग द लाइन ऑफ वेल्डिंग, जितना वेल्ड हुआ है उतना पार्ट्स वो बता रहा है. ओके, नाउ इन सिंगल ट्रांसवर्स, फिर उसके बाद में सिंगल ट्रांसवर्स के लिए और डबल ट्रांसवर्स के लिए दिया है डायग्राम. यू कैन सी इन द टॉप व्यू the length of the weld is visible and length of weld is perpendicular to the line of action of the load acting on the plate. ओके, हम लोगों को जो डिज़ाइन करनी है वो इनमें से ही डिज़ाइन करना है. पूरे चैप्टर में सिर्फ इसका ही डिज़ाइन है. सब वेल्डिंग कैटेगरी का डिज़ाइन इज़ नॉट इंक्लूडेड इनटू द सिलेबस. ओके, नाउ डबल ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड का भी वहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है. नाउ नेक्स्ट कैटेगरी इज़ द बट जॉइंट. बट जॉइंट वी आर गोइंग टू प्लेस द plates which we are going to join side by side and their edges nearly touching each other. ठीक है, वहाँ पर ये वेल्ड होता है और उसकी वजह से वो जॉइन होता है. मतलब जो दो प्लेट्स को, जो दो पार्ट्स को हमको ज्वाइन करना है उसको आजू बाजू में हम लोग को रखना है वेरी क्लोजर टू ईच अदर एंड विद द हेल्प ऑफ फिलर मटेरियल उसको हम लोग फ्यूजन की मदद से ज्वाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ वेल्डिंग. ओके, यहाँ पे वी हैव टू यूज़ कंपल्सरी द फिलर मटेरियल, हम लोग को वो यूज़ करना पड़ता है. नाउ बेस्ड ऑन द शेप एंड द टाइप ऑफ द जॉइंट, ये किस तरह से बन रहा है उसके बेसिस पे ये कैटेगरीज यहाँ पर दी हुई है. लाइक स्क्वायर बट वेल्ड, सिंगल वी बट वेल्ड. यू कैन सी दैट कि यहाँ पे वी जैसा शेप बन गया है. ज्वाइन करते टाइम फिलर मटेरियल का जो शेप है वो वहाँ पे वी बन गया है. यू कैन सी द एंगल, वी एंगल जो होता है वहाँ पे वो 60 डिग्री का है. सिंगल यू बट वेल्ड, यू कैन सी द शेप डबल वी बट वेल्ड एंड डबल यू बट वेल्ड. ठीक है, अगर विड्थ
width of the plates are between 5 mm to 12.5 mm, then we use the single U butt or single V butt. Okay, and if the thickness of the plate is more than 12.5 millimeter, then will choose the double U butt or double V butt weld. Okay, so single और double का difference क्यों होता है? It is based on the thickness of the plate, उसके बेस पे वो सिलेक्ट होता है. यही यहाँ पे जो मैंने अभी बोली वही वो एक्सप्लेनेशन में वहाँ लिखा हुआ है. नाउ नेक्स्ट इज द अदर टाइप्स ऑफ वेल्ड्स लाइक कॉर्नर वेल्ड्स, एज वेल्ड्स एंड टी वेल्ड्स. यू कैन सी द डायग्राम, और डायग्राम में जो बताया वो बिल्कुल वही बताया हुआ है, तुम आसानी से समझ सकते हैं. कॉर्नर पे बना है तो कॉर्नर वेल्ड, और अगर एजेस पर ज्वाइन किया है वेल्ड का तो किस तरह से तुम देख सकते हैं कि दोनों शीट्स जो है वो किस तरह से वेल्ड हुई, दोनों के मटीरियल उसमें इंक्लूड किए हुए. एंड टी वेल्ड में जो वेल्ड करने के बाद जो शेप बन रहा है वो टी जैसा बन रहा है. नाउ हियर द डिफरेंट सिम्बल्स आर गिवन. दिस इज इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, यू कैन सी द वेरियस आई सिम्बल्स रिप्रेजेंटिंग वेल्डेड कनेक्शंस. ओके, नाउ फिलेट के लिए यू कैन सी द सिंबल इज ट्राइंगल. जो लास्ट कॉलम में सिंबल दिए हुए है उस पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करो, और बीच में जो है वो सेक्शनल रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है. ठीक है, वो दोनों तुमको याद रहना चाहिए. स्क्वायर बट के लिए देख सकते हैं तुम लोग कैसा शेप दिया हुआ है. सिंगल वी बट के लिए वी शेप है. डबल वी बट के लिए किस तरह से क्रॉस एंड ऊपर नीचे बीवेल का लाइन दिया हुआ है. सिंगल यू बट के लिए यू एंड बीवेल लाइन है ऊपर. डबल यू बट के लिए दो ऊपर नीचे यू और डबल बीवेल लाइन भी है ऊपर एंड नीचे. सिंगल बीवेल बट, डबल बीवेल बट, सिंगल जे बट जॉइंट, डबल जे बट जॉइंट. यू कैन सी जो जैसा उसका नाम है, नाम के बेसिस पे ही वैसे ही उसके सिंबल्स बने हुए हैं. ठीक है, तो तुमको ये सिंबल्स देखना है और याद रखना है, सीखना है, उसको याद रखना है. सीलिंग रन के लिए क्या सिंबल है, स्पॉट वेल्डिंग के लिए क्या सिंबल है, सीम के लिए, ये सब कैटेगरीज अभी यहाँ पे हम लोग ने डिटेल में डिस्कस तो नहीं की, बट यू हैव लर्न इन द सब्जेक्ट MPR में तुम लोग ये सीख चुके ना. प्लग के लिए यू कैन सी प्लग वेल्ड के लिए क्या है सिंबल, प्रोजेक्शन के लिए एंड फ्लैश के लिए. ओके, नाउ विल सी द नेक्स्ट स्लाइड. ठीक है ना, यहाँ पे तुम लोगों का जो थियरी जितना पार्ट था वो मैंने यहाँ पे कवर कर लिया है. ना दीज आर द लिस्ट ऑफ द क्वेश्चंस विच आर आस्क्ड इन आई स्कीम एंड मॉडल क्वेश्चन पेपर ऑफ द आई स्कीम. ओके, लिस्ट द applications of welded joints I have already discussed. previous slides में मैंने वो अभी डिस्कस किया है. explain the design procedure for eccentrically loaded bolted joint. ठीक है, ये previous chapter में ये क्वेश्चन कवर हो चुका है. state the strength equations of double parallel fillet weld and single transverse fillet weld with neat sketches. आगे की जो ये स्लाइड और इसके बाद छोड़ के जो आगे की 3 स्लाइड्स है उसमें वही डिज़ाइन स्टेप्स एंड स्ट्रेंथ इक्वेशंस कवर हुई है. बिकॉज हम लोगों को डिज़ाइन सिर्फ किसका है, पैरेलल फिलेट वेल्ड एंड ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड का है. मतलब अभी जितनी मैंने कैटेगरीज यहाँ पे गिनाई है वेल्ड का, उसमें से सिर्फ एक ही वेल्ड का कैटेगरी हमको डिज़ाइन करना है एंड दैट इज़ फिलेट वेल्ड. फिलेट वेल्ड के दो टाइप्स है, पैरेलल फिलेट एंड ट्रांसवर्स फिलेट. तो उनका मैं तुमको डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूलेस देने वाली हूँ. डेरिवेशन इज़ नॉट एक्सपेक्टेड इन एग्जाम. ठीक है, तुमको सिर्फ उसके अल्फ़ाबेट्स वो सीखने हैं, फॉर्मूला सीखना है, और गिवन डेटा क्वेश्चन में से पढ़कर तुम अगर पहचान गए तो वो सिर्फ वैल्यूज़ वहाँ रखकर जो अननोन रहता है जनरली लेंथ ऑफ द वेल्ड हमको कैलकुलेट करना इन डिज़ाइन. ठीक है, तो वो तुमको सिर्फ L कैलकुलेट करना रहता है. ठीक है, नाउ कंपेयर द वेल्डेड जॉइंट विद स्क्रूड जॉइंट. ये मैंने तुमको इसके पहले कंपैरिजन में बता दिया है. स्टेट एनी 4 एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द वेल्डेड जॉइंट ओवर रिवेटेड जॉइंट्स. एक्सप्लेन विद नीट स्केच द बोल्ट ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ. ये प्रीवियस वाले सेक्शन में हो गया है कवर. ठीक है, एक्सप्लेन उसके बाद में ये जो न्यूमेरिकल है, दिस न्यूमेरिकल ऑल्सो वी हैव कवर्ड, क्योंकि ये तुम लोग का स्क्रूड जॉइंट थ्रेडेड जॉइंट के ऊपर ये न्यूमेरिकल था. ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में कवर कर लिया है. नाउ विल सी द नेक्स्ट स्लाइड. This slide is also covering the numericals asked on the welded joint. यहाँ पे 3 न्यूमेरिकल है, तीनों एग्जाम के हैं. और देखो इसमें से तीन में से पहला वाला जी स्कीम का है फॉर 4 मार्क्स. रेस्ट ऑफ द 2 क्वेश्चंस आर फॉर 6 मार्क्स फ्रॉम आई स्कीम. ठीक है, मतलब आई स्कीम में भी जो भी न्यूमेरिकल्स अब तक जितना आई स्कीम के पेपर से जो न्यूमेरिकल्स पूछे गए हैं वो वेल्डेड जॉइंट पर पूछे गए हैं, नॉट ऑन थ्रेडेड जॉइंट. ठीक है, थ्रेडेड पर नहीं पूछे, वेल्डेड पर पूछे. ठीक है, तो ये तीनों जो न्यूमेरिकल्स है, हमारा जो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट नंबर 11 है उसमें हम ये तीनों न्यूमेरिकल्स डिज़ाइन करेंगे. ठीक है, नाउ फॉर डिज़ाइनिंग, ठीक है, फॉर डिज़ाइनिंग वी नीड द फॉर्मूलेज. सो आई विल स्टार्ट विद द फॉर्मूलेज. ओके, सो फर्स्ट
कैटेगरी है डिज़ाइन ऑफ सिंगल एंड डबल ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड। पहले तो तुम लोग ये डायग्राम जो है वो अच्छी तरह से देख लो। ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड मीन्स द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द लोड विल बी परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ वेल्ड। यू कैन सी दैट इन द डायग्राम। पहला डायग्राम जो है वो सिंगल ट्रांसवर्स के लिए एंड सेकेंड वन इज फॉर डबल ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड। नाउ द मेन अल्फाबेट्स, लेट स्मॉल लेटर एल इज द लेंथ ऑफ द वेल्ड। यहाँ पे राइट नाउ जो है जितना विड्थ है तुमको वही वहाँ पे मैं बता रही हूँ, एल भी उतना ही दिखा रही है कि पूरे थ्रू आउट द लेंथ के लिए वेल्ड हुआ है, ठीक है, बट नॉट नेसेसरी द लेंथ एंड द विड्थ विल बी सेम, ज़रूरी नहीं है। ओके, नाउ स्मॉल लेटर एस इज द साइज ऑफ वेल्ड। एस को साइज ऑफ वेल्ड बोलते हैं एंड दैट इज एक्चुअली द थिकनेस ऑफ द वेल्ड। यू कैन सी इन द टॉप व्यू, ठीक है, टॉप व्यू में तुम लोग देख सकते, फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू दो बताए मैंने यहाँ पे। फ्रंट व्यू में यू कैन सी द थिकनेस ऑफ द प्लेट जिसको हम वेल्ड करने जा रहे हैं एंड दैट थिकनेस ओनली बिकम्स द साइज ऑफ वेल्ड, ठीक है, वो वहाँ पे मैंने डायग्राम में मार्क किया हुआ है। एल एंड एस ये दोनों मैंने मार्क किया। नाउ लेट द सिग्मा टी इज द मैक्सिमम परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेंथ फॉर द वेल्ड जॉइंट। जो जॉइंट बना है उसकी, वो जॉइंट का जो मटेरियल है उसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है दैट इज सिग्मा टी। नाउ फॉर सिंगल ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड, नाउ सी ये जो ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड्स होते हैं दीज आर डिजाइन फॉर द tensile failure. These are designed for the tensile failure because line of action is perpendicular to the length of the fillet weld. Okay, so these are designed for the टेंसाइल स्ट्रेस। तो मैंने वही लिखा है वहाँ पे, कंसीडर द फेलियर ड्यू टू टेंसाइल स्ट्रेस। नाउ फॉर सिंगल ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड व्हाट विल बी द फॉर्मूला। देखो फॉर्मूला हमारा स्ट्रेस का सब जगह पे एक ही रहता है, लोड पर क्रॉस सेक्शनल एरिया। ओके, सो लोड अपॉन एरिया, लोड एरिया जहाँ पे मिनिमम एरिया ऑफ द वेल्ड रहेगा देयर द टेंसाइल स्ट्रेस विल बी मैक्सिमम। तो वही मैंने वहाँ पे लिखा है, लोड अपॉन मिनिमम एरिया ऑफ वेल्ड। सो सिग्मा टी के लिए फॉर्मूला बन गया W अपॉन 0.707 इंटू एस इंटू एल, where S is the thickness of the plate, thickness of the plate or size of the weld, and L is the length of weld into sigma T। ठीक है, ये हो गया सिंगल ट्रांसवर्स के लिए। सिमिलरली फॉर डबल ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड, इस फॉर्मूले में क्या चेंज हुआ है, मैंने सिर्फ उसको इंटू 2 किया है ऊपर वाले फॉर्मूले का। सो 2 इंटू 0.707 विल बिकम 1.414 इंटू एस इंटू एल इंटू सिग्मा टी। सो तुमको याद रखना है कि ट्रांसवर्स वेल्ड अगर तुम डिज़ाइन कर रहे हैं, सो ट्रांसवर्स वेल्ड्स आर डिज़ाइन फॉर द failure due to tensile stress. Okay, now we'll see the next design for the parallel fillet weld. So design of single and double parallel fillet weld. You can see the diagram, यहाँ पे मैंने एक ही व्यू बनाया है डायग्राम का एंड इन दैट व्यू सब कुछ यहाँ पे विजिबल है। तो अगर दो प्लेट्स जो इट इज़ जॉइंट विद द हेल्प ऑफ पैरेलल फिलेट वेल्ड, ठीक है, देन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द W will be parallel to the length of the weld. Okay, now first diagram is for single parallel fillet weld and second one is for double parallel fillet weld. Now let the alphabets will be same. L will be the length of the weld and S is the size of the weld or thickness of the plate, उसी को बोलते हैं, ठीक है। Now next consider the failure due to shear stress. Now ये वाले जो है parallel fillet welds, these are designed for the failure due to shear stress, क्योंकि यहाँ पे क्या है, लेंथ इज पैरेलल टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ लोडिंग। सो फॉर सिंगल पैरेलल फिलेट वेल्ड, देखो फॉर्मूले में क्या चेंज हुआ है, सिर्फ प्रीवियस में सिग्मा टी की जगह यहाँ टाउ आ गया, शेयर स्ट्रेंथ, लोड की जगह पे W ही है एंड मिनिमम एरिया ऑफ वेल्ड जो है वो भी सेम है। मतलब एक्चुअल में फॉर्मूले में क्या चेंज हुआ, सिर्फ सिग्मा टी की जगह पे टाउ आ गया। तो ये याद रखने का कि ट्रांसवर्स रहेगा तो सिग्मा टी एंड पैरेलल रहेगा तो टाउ, एंड टाउ इज द shear strength of the weld joint. Okay, now for double parallel fillet weld अगेन क्या फॉर्मूले में चेंज हुआ, ऊपर से नीचे, ठीक है, सिर्फ इंटू 2 किया है मैंने, 2 इंटू 0.707 एंड दैट विल बिकम 1.414. ओके, तो दिस इज सेकेंड कैटेगरी। फॉर्मूले भी छोटे हैं, डिज़ाइन भी सिंपल है और मार्क्स तो तुमको सेम जो डिज़ाइन के न्यूमेरिकल्स है उतने ही मिलने वाले हैं, 6 मार्क्स, ठीक है। नकल जॉइंट ड्रॉ डिज़ाइन करेंगे तो भी 6 मार्क्स और ये छोटे छोटे सिंपल पे अगर वेल्डेड जॉइंट्स डिज़ाइन किया तो भी 6 मार्क्स,
ठीक है, तो तुम लोगों का चॉइस है कि तुम लोगों को अभी कौन सा वाला ज़्यादा अच्छे से समझ में आ गया है और जो तुम इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं विदाउट लूजिंग मार्क्स. नाउ नेक्स्ट एंड द थर्ड एंड द लास्ट वन इन दिस चैप्टर, डिज़ाइन ऑफ कंबाइंड सिंगल ट्रांसवर्स एंड डबल पैरेलल फिलेट वेल्ड. देखो यहाँ पे डायग्राम में मैंने बताया एक सिंगल ट्रांसवर्स है और दो पैरेलल है, डबल पैरेलल है. ठीक है, तो इन शॉर्ट इट इज़ कवरिंग द कंप्लीट, पूरी तरह से कवर किया है ना, जहाँ पे जॉइंट हो रही है दो प्लेट्स उसको पूरी तरह से कवर किया है. ठीक है, तो अभी है इसमें जो ये जो W है, ये W जो है वो दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. सिंगल ट्रांसवर्स का कुछ पार्ट जो है वो सिंगल ट्रांसवर्स जो है वो बेयर करेगा और उसका रेस्ट ऑफ द पार्ट विल बी बेयर बाय द डबल पैरेलल, वो बेयर करेगा. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये जो W है अभी ये दो में स्प्लिट हो जाएगा, WT एंड WS में. WT इज़ फॉर सिंगल ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड. दिस इज सब्जेक्ट टू टेंसाइल स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेस. दोनों टाइप के स्ट्रेसेस आएंगे. जिस टाइप का जो वाला तुम वेल्ड कंसीडर कर रहे हैं वहाँ पे उस टाइप का स्ट्रेस. मतलब अगर तुम सिंगल ट्रांसवर्स के लिए लिख रहे हैं तो WT द फेलियर ड्यू टू टेंशन, and if you are writing for double parallel then failure due to shear. Okay, so W is split in WT and WS. इसके पहले क्या आता था, जो W रहता था वो डायरेक्ट उस पर्टिकुलर वेल्ड के लिए वही डायरेक्ट W था. ठीक है, बट यहाँ पर ये W जो है वो स्प्लिट हो जाएगा, WT एंड WS में होएगा. ठीक है, सो फॉर सिंगल ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड के लिए जो है वो WT बन जाएगा 0.707 इंटू S इंटू L इंटू सिग्मा T. यू कैन सी कि L1 जो लेंथ है ये मैंने ट्रांसवर्स के लिए रखी है एंड L2 लेंथ मैंने डबल पैरेलल के लिए रखी है. ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे फॉर्मूला आ गया. ना फॉर डबल पैरेलल फिलेट वेल्ड के लिए फॉर्मूला थोड़े इसके पहले वाली स्लाइड्स में हमने ये फॉर्मूले अभी सीखे हैं. सो WS लिखा है मैंने इसको फेलियर ड्यू टू शियर 1.414 इंटू S इंटू L2 इंटू टाउ. यहाँ पे ये डबल पैरेलल है इसलिए 1.414 ये फ्रैक्शन आए. ना टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द वेल्ड जो रहेगी तो इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड इन दीज टू, ट्रांसवर्स एंड पैरेलल दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो गई. सो W विल बी इक्वल टू WT प्लस WS. ओके, अब वहाँ पे मैंने जो ऊपर से फॉर्मूले मिले हैं वही लिख दिए. तो यू कैन सी, यू कैन कंपेयर द फॉर्मूलेज आर वेरी शॉर्टर than any other designs which you have done in this ओवरऑल इन कंप्लीट दिस सब्जेक्ट. ठीक है, पूरे सब्जेक्ट में ये सबसे छोटा डिज़ाइन, सबसे छोटे फॉर्मूलेज वाला है, सबसे सिंपल है. सो आई एक्सपेक्ट कि इसको समझने सीखने के लिए भी ये सबसे आसान होएगा और इसके न्यूमेरिकल्स एंड थियरी अटेम्प्ट करने के लिए भी ये सबसे आसान होगा. ओके.